بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں اس وقت موجود ہوں مسقط، جو کہ عمان کا دارالخلافہ ہے۔ اس کی ایک بڑی خوبصورت سی وادی ہے سلطان مدینہ سلطان القبوس، اور اس وادی کی ایک کمرشل ایریا میں موجود ہوں، اور یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کمرشل ایریا میں، اور میں آپ بہت زیادہ فارنر موجود نظر آتے ہیں، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ انڈین ہیں، بنگلہ دیشی ہے، اور ہمارے پاکستانی بھائی بھی ہیں۔ اور اس کمرشل ایریا کی خوبصورتی ہے کہ یہ ایک بہت ہی پرسکون سا ایریا ہے، اور یہاں پہ ایک باربر شاپ ہے، اور جو کہ ایک پاکستانی وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور میں نے سوچا کیوں نہ ہم پاکستانی ہمارے بھائی ہیں جو کہ گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے، ان سے ہم بات چیت کریں کہ وہ یہاں پہ ان کا کام کیسا چل رہا ہے، ان کی جاب شاپ کیسے چل رہی ہے، اور وہ ان کا کام کے حساب سے اور یہاں پہ لیونگ کے حساب سے کتنے خوش ہیں، وہ شیئر کریں۔ اور دوسرا یہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جو یہاں پہ مسقط عمان میں آنے کے لیے لیگل چینلز ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ اوکے جی، جزاک اللہ۔ چلتے ہیں ہم ان کے پاس۔ عمر صاحب ان کا نام ہے، جو کہ سیلون میں کام کرتے ہیں۔ جی، دس از دا ایریا آف دا سیلون۔ یہ یہاں پہ میں نے ان سے بات چیت جب کی تھی کل، تو وہ کہنے لگے، تو انہوں نے مجھے تھوڑی سی اس کی تفصیلات بتائی تھیں۔ اور یہ جیسے کہ ہمارے پاکستان میں یہ ایریا ہوتا ہے، یہ ان کی اکوپمنٹ ہے، اور یہ ان کی اکوپمنٹ ہے ماشاءاللہ۔ یہاں پہ ہر جیسے کہ ایک ایریا ہوتا ہے، یہ ویٹنگ ایریا جی، اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے یہاں پہ کیبن بنے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ کیبن، تو ہر ایک کا سپریٹ کیبن ہوتا ہے۔ ایک جب بھی کوئی کسٹمر آتا ہے تو دے ہیو اے سپریٹ کیبن، اور اسٹرلائزیشن کے سامان موجود ہیں۔ دس از آلسو اندر کیبن، دس از آلسو اندر کیبن۔ اور یہ ماشاءاللہ یہاں کے جو کنگ ہیں، یہ ان کی پک ہے، جو کہ آپ کو ہر کمرشل ایریا میں آپ کو نظر آئے گی۔ ابھی ہم جا رہے ہیں کیبن میں، جہاں پہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے، ہیئر کٹنگ ہو رہی ہے، اور ہمارے بھائی عمر صاحب موجود ہیں جو کہ کٹنگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اس میں اپنے کام میں مصروف ہیں، اور مسقط میں کب سے رہ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ مسقط کے کیا حالات ہیں، اور ان کی ذاتی زندگی یہاں پہ کب سے ہے، اور کتنے یہاں پہ خوشحال ہیں، یہ کیا یہاں کے مسائل ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں اپنے پاکستانی بھائی عمر سے، جو کہ گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے۔ السلام علیکم عمر بھائی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ بتائیں عمر بھائی، آپ یہاں کب سے ہیں مسقط میں، کب سے یہ کام ماشاء اللہ خدمت کر رہے ہیں؟ جی انکل، مجھے یہاں پہ 6 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا، مسقط میں 6 سال ہو گئے جی ٹھیک ہے۔ اور یہ جو باربر کا کام ہے، یہ آپ نے وہیں سے سیکھا تھا یا یہاں سے آپ نے سیکھا ہے؟ جی، یہ میں نے پاکستان سے سیکھا تھا، ہوں، تو یہ میرے بھائی ہیں، ان کی شاپ پہ میں ہوتا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو ہمارے فرینڈ بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، ہوں ہوں، ہم مل کے کام کر رہے ہیں یہاں پہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ بتائیں کہ آپ یہاں پہ جو آپ کے کام ایکٹیویٹی ہے، اور یہ جو آپ کے کتنے کسٹمر آ جاتے ہیں، جس سے آپ کا کیسا گزارا کیسا ہو رہا ہے؟ جی الحمدللہ، کام ٹھیک ہے ادھر، ہاں، کام شام ٹھیک ہے، کسٹمر بھی اچھے ہیں۔ ہوں ہمارے کسٹمر ریگولر لگے ہوئے ہیں، جو ہمیں کال کر کے آتے ہیں، ہوں، تو ہم ایسے کام کرتے ہیں۔ چلیے ماشاء اللہ۔ اور یہ بتائیں کہ آپ کے یہاں چارجز کیا ہیں جو آپ ہیئر کٹنگ کرتے ہیں جینٹس کی؟ یہ چارجز تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے۔ جی جی، جو اسٹائلش کٹنگ ہے اس پہ ہم 2 ریال لیتے ہیں، ہوں جو سمپل کٹنگ ہے ہم اس کا 1 ریال لیتے ہیں، ہوں، تو بیٹ کا بھی ہم 1 ریال لیتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا اسٹائلش ہو تو اس کے ہم 3 ریال بھی لیتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ابھی یہ جو بھائی ہیں، ان کی کٹنگ کو آپ کیا کہیں گے، یہ اسٹائلش ہے یا سمپل ہے؟ یہ کٹنگ بھائی نے کروائی ہے، بس سمپل ہی ہے۔ سمپل ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس ادھر سے شارٹ کی ہیں، اوپر سے تھوڑا سا ویٹ کم تو کیا۔ آپ ان سے کتنے چارجز لو گے؟ ہم اس کٹنگ کا 1 ریال لیں گے۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ یہ ریزنیبل ہے؟ اس کے علاوہ اسٹائلنگ کلر وغیرہ کروائیں گے تو اس کے چارجز زیادہ ہوں گے۔ اوکے، سیٹ سے سیپریٹ چلتے رہتے ہیں، ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ میں نے ابھی 7 سال آپ کی دکان پہ ٹرکش والوں سے پوچھا تھا، ان کا ریٹ کم سے کم 2 ریال ہے، تو آپ کم چارج کرتے ہیں، تو اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ کمپٹیشن ہے؟ نہیں، یہ کمپٹیشن نہیں ہے۔ جو ترکش والے ہیں اور جو ہے دوسرے، ان کے چارجز تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اوکے اوکے اوکے، تو ہم پاکستانی ہیں، اس وجہ سے ہم ہر کسی سے محبت کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ کے پاس صرف پاکستانی کسٹمر آتے ہیں یا آپ کے پاس دوسرے ہمارے بھی؟ پاس پاکستانی، انڈین، بنگالی، نیپالی، اس کے بعد جو ہے گورے، عمانی، ہم ہر کسی سے
रेट ज्यादा नहीं लेते। माशाल्लाह। तो ये बिकॉज ऑफ कंपटीशन की वजह से नहीं आपने नहीं अच्छा कंपटीशन की वजह से नहीं, हम हर किसी का ख्याल रखते हैं। माशाल्लाह आप ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा ये बताएं कि आपके माशाल्लाह यहाँ पे अकेले रह रहे हैं या फैमिली बुलाई हुई है आपने? नहीं नहीं मैं अभी अकेला ही हूँ इंशाल्लाह ताला। हाँ तो जब शादी होगी तो फैमिली भी बुलाएंगे इंशाल्लाह। तो पाकिस्तान में कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं पाकिस्तान गुजरांवाला मार्डोन अच्छा अच्छा, वो कराची हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो यहाँ से पाकिस्तान में जब आप आए थे तो कानूनी तरीके से आए थे या थोड़ा सा दूसरे तरीके से आए थे? नहीं नहीं अंकल, मैंने वीजा लिया था, मुझे ये भाई ने वीजा दिया था तो मैं वीजे पे आया। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो ये थोड़ा सा मैं आपसे इसलिए मैंने सवाल पूछा है कि हमारे जो भाई वहाँ पे परेशान होते हैं, जो बाहर के मुल्कों में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, जी जी। वो कानूनी तरीके से आने की बजाय उनको कोई गलत रास्ता दिखा देता है, वो बेचारे पैसे भी खर्च करते हैं, वो के बाद में परेशान भी होते हैं। आपका इस बारे में क्या मशवरा है अपने उन भाइयों के हर लिए? किसी भाई के आगे यही है कि वीजा लेके आए, यहाँ पे काम करें। ओमान बहुत अच्छी कंट्री है, माशाल्लाह। ठीक है, सेफ कंट्री है। यहाँ पे आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं है, ठीक है, सुकून है यहाँ पे। मैंने तो ये देखा कि बहुत सुकून है। यूरोप से अच्छा यहाँ पे सुकून है। यहाँ से अच्छा सुकून है। और कमाई वाइज कैसा है? कमाई वाइज बहुत अच्छा है। और अपॉर्चुनिटीज जो मौके कहते हैं मुलाजमत के, काम करने के? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हाँ यहाँ का कानून बहुत अच्छा है, यहाँ पे हर लोग प्यार करते हैं माशाल्लाह। तो इसका मतलब यहाँ पे मुलाजमत के मौके हैं जो हमारे भाई की जिसके पास हुनर होना चाहिए, जी जी, वो इधर कामयाब। वो हुनर होगा उसके वो वहाँ कामयाब। ऐसी बात है ना। मैंने भी जो मेरी भी ऑब्जर्वेशन है कि जो हुनर है उसको वो हमारे यहाँ पे बहुत कामयाब है। और लेकिन जब अगर किसी के पास हुनर नहीं है तो वो आना चाहता है अपने, लेकिन वो अपने किसी रिश्तेदार के पास आए, काम सीखे, फिर उसके लिए भी मुलाजमत के मौके हैं। आपके पास हुनर है तो आप कामयाब हैं। आप कामयाब है। अगर आप वैसे वीजा लेके आते हैं तो फिर वो परेशानी आपकी, वो परेशानी। अच्छा वैसे वीज़ा लेके आते हैं जो महंगा खरीद के आते हैं वो परेशानी है, काम पे आए आप कंपनी का वीजा लेके आए, आप आजाद वीजे पे मत आए। हाँ माशाल्लाह। ठीक है, आप कंपनी का वीजा लेके आए तो आप आके काम पे करें। काम भी करो माशाल्लाह। ये बहुत अच्छा पैगाम अगर है। आप आजाद वीजा लेके आएंगे तो आप परेशान होंगे। ये आपने बहुत अच्छा पैगाम पाकिस्तानी को दिया। जो हमारी आज की वीडियो का मकसद भी ख़वातीन हज़रात यही था कि हम अपने जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, और मैंने इनको जब कल परसों ने मिला था बहुत मुखलिस पाया था, अच्छा मशवरा देते हैं। जैसे यहाँ के लोकल हमारी भाई हमारे बहुत प्यारे, कोई भी बात पूछो आपको गाइड करते हैं। ऐसे मुझे उमर ने भी परसों छोटे से मेरी एक काम था, इसने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया था। उमर बहुत शुक्रिया आपका। क्या और कोई आपको पैगाम आप अपने पाकिस्तानी भाइयों को देना चाहते हैं वो बताएं? 4 साल हो गया मैं पाकिस्तान नहीं गया, तो मैं पाकिस्तान को बहुत मिस कर रहा हूँ। तो बस तो पाकिस्तान के बारे में क्या आपके पैगाम, ओवरऑल पाकिस्तान जिंदाबाद कहना चाहते हैं आप? पाकिस्तान से हमें प्यार है, मोहब्बत है, हमें अपने शहर से बड़ी मोहब्बत है। माशाल्लाह। तो हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान के जो शहर है हमारा, हम उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मतलब दिल करता है पाकिस्तान में जाएं। 4 साल हो गए नहीं जा सके, है ना? जी जी, 4 साल हो गया नहीं जा सके। अल्लाह ताला आपकी ये ख्वाहिश पूरी करे और खैरियत से पाकिस्तान जाएं। पाकिस्तान के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान के आप एम्बेसडर बन के यहाँ आए हुए हैं, और ये आप जितने अच्छा कंडक्ट करेंगे पाकिस्तानियों के बारे में अच्छी यहाँ पे इंप्रेशन बनता है। पाकिस्तान के लिए बस ये है कि बस वहाँ के कानून अच्छे हो जाएं, ठीक है, और जो उधर के लोग हैं वो वीजा लेके आए, लोग आजाद वीजे पे आते हैं, ठीक है, काम उनको मिलता नहीं, बेचारे फिर यहाँ पे जलील होते हैं, परेशान होते हैं, और फिर पाकिस्तानियों को देख के दुख होता है, दुख भी होता है, खुद भी परेशान होते हैं। पाकिस्तान के लिए भी पैगाम आपको देना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वीजे लेके आते हैं तो यहाँ पे भीख मांगते हैं, ठीक है, तो इससे पाकिस्तान का, हमारा और आपका नाम बदनाम होता है। बिल्कुल पाकिस्तान तो उनके आगे से ये गुजारिश है छोटी सी कि खुदारा आप यहाँ पे आए पर पाकिस्तान का नाम मत बदनाम करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही बात है। मतलब कि पाकिस्तान का जब हम नाम बदनाम करते हैं तो हम सबको पाकिस्तानी को बहुत दुख होता है। तो हमारे लिए हमारा वतन बहुत प्यारा लगता है। देखिए जी, मैं अभी पाकिस्तान से छुट्टी पे आया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आकर ज्यादा आए, काम करें, अपना सिक्का चलाएं, ठीक है कि नहीं? अच्छा ये बताइए, आपने जो स्टरलाइजेशन है यहाँ पे प्रॉपर इंतजाम आपका स्टरलाइजेशन है का है? ये हमारा स्टरलाइजर है, ठीक है, इसके अंदर हम अपने ये सीजर वगैरह, ये डिस्पोजेबल रेजर रखे हुए हैं, यहाँ पे डिस्पोजेबल रेजर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा माशाल्लाह। और उसके बाद यहाँ पे डिस्पोजेबल ये कीज इस्तेमाल होता है, ठीक है, माशाल्लाह। तो ये वन टाइम इस्तेमाल करके तो हम इसे फेंक देते हैं। ये पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं कि एक ही आदमी पे
वही बार बार इस्तेमाल किया जाए। चले भाई, इतनी सारी क्रीमें, इतने सारे फेस मास्क लगे, ये सारे अप्लाई होते हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे पास कस्टमर आते हैं, हम उनके ऊपर इस्तेमाल करते हैं। चले, और उसके भी ज़्यादा चार्जेज है जैसा कि आपने बताया। अच्छा भाई, जो ये कस्टमर आपके ये पाकिस्तानी भाई हैं हमारे? नहीं, ये मेरे इंडियन भाई हैं। इंडियन भाई, ये माशाल्लाह हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। माशाल्लाह। ये आपके रिपीटेड कस्टमर है? जी अच्छा सर, ये बताइए कि आपका क्या नाम है थोड़ा सा? मेरा नाम अजन। अजय? अजन। अजन, माशाल्लाह। तो कौन से? मैं डाउन साउथ केरला से हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपने हमारी बातें बड़ी मोहब्बत से सुनी है, बड़े प्यार से सुनी है। आप कोई बात कहना चाहेंगे यहाँ पे हमारी जो कम्युनिटी है, जो आपकी इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जो एक ही हम ज़बान कम्युनिटी है? It's all same community. We are all human beings. माशाल्लाह There's no boundary between us. And it's really nice. I'm coming back to that again. माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच जी फॉर योर नाइस वर्ड्स। अच्छा भी उमर भाई, सो नाइस भी आपका काम मैंने देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा भी दिल करता है मैं यहाँ कटिंग कराऊँ। तो मैं ख्याल इस वीडियो के बाद पहले अपलोड करने का आपसे जो वादा किया है, अपलोड करके फिर मैं आऊँगा, फिर आपसे कटिंग कराऊँ। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। एक बार नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, ओमान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, आपने देखा कि ओमान में, मस्कत में लोग किस तरीके से मेहनत करते हैं। मेहनत जहाँ भी करेंगे, रिज़्क़ हलाल अल्लाह ताला ने आपके मुक़द्दर में लिखा है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि क्या मेरी ज़मीन तंग है? मेरी ज़मीन पे चलो फिरो और देखो कि और मेरा फ़ज़ल कहाँ कहाँ है, उस फ़ज़ल को तलाश करो। ये माशाल्लाह अल्लाह ताला ने कहा है, जिसका रिज़्क़ अल्लाह ताला ने यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ आते हैं, यहाँ आकर अपना मेहनत करते हैं। और मुफ्त की कोई चीज़ नहीं है, मेहनत से ही मिलती है। ये अल्लाह का वादा है, मेहनत करो, मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम दूंगा, तो अपना फजल दूंगा। तो जनाब अली, पाकिस्तान में अगर आपको समझते हैं कि वहाँ सेट नहीं है, आपके लिए बहुत मौके हैं, बाहर के मुल्कों में आएँ। और जैसे मस्कत, ओमान भी उनमें से एक कंट्री है। यहाँ चीज़ मैंने जो ऑब्ज़र्व की है, हर जगह सुकून, और मेहनत तो करनी पड़ती है रिज़्क़ कमाने के लिए, और मेहनत के मौके यहाँ मौजूद हैं। जैसा उमर ने कहा है कि भाई आएँ ज़रूर, और वीज़ा ख़रीद के ना आएँ, इंडिपेंडेंट आज़ाद वीज़े पे ना आएँ, जॉब वीज़ा पे आएँ। और ओमान से सही शेखैन को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।